हेलो बच्चों, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं। ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ट्रेन रेस्ट से शुरू कर रहा है। मूव्स विथ ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर हाफ ए मिनट। मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आधे मिनट के लिए चलता है। द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड। उसके बाद ब्रेक लगाया जाता है। द ट्रेन कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट। उसके बाद अगले 1 मिनट में, नेक्स्ट 1 मिनट में ट्रेन ब्रेक ब्रेक लगाने के बाद रेस्ट में आ जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है, फाइंड टोटल डिस्टेंस मूव बाय ट्रेन। इस केस में टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेन मूव करेगा। एक आधे मिनट एक्सेलरेट किया है और फिर उसके बाद 30 मिनट, 1 मिनट क्या किया है, डी एक्सेलरेट किया है। तो टोटल डिस्टेंस कितना तय किया जाएगा। मैक्सिमम स्पीड अटेंड बाय ट्रेन। ट्रेन के द्वारा मैक्सिमम कितना स्पीड अटेंड करेगा। एंड सी नंबर इज पोजीशन ऑफ द ट्रेन एट द हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड। ट्रेन के पास मैक्सिमम स्पीड से आधा स्पीड होगा तो उसके उस समय उसका पोजीशन क्या होगा, कहाँ पे ट्रेन। ये सवाल हमसे पूछा है। तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन का सवाल है। इसमें हम लोग तीन इक्वेशन फार्मूला लगाते हैं। एस इज इक्वल टू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, डी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s एंड वी इक्वल टू यू प्लस 8। इन तीन फार्मूलों की मदद से इस सवाल को अपन सॉल्व करेंगे। ओके, स्लाइड शेयर करता हूँ और देखो इस सवाल को अपन कैसे करें। सॉरी। ओके, तो सवाल जैसा कि बोल रहा है कि एक ट्रेन है। ट्रेन ट्रेन इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मीन्स u इक्वल टू 0 and accelerating with acceleration of 2 meter per second square. Accelerating with acceleration of 2 meter per second square. Okay. And for 30 seconds, half a minute. So here time is 30 seconds, half a minute. So what distance it will travel? S1. S1 is equal to ut plus half a t. It will be u is 0 plus half acceleration is 2 into t square. T square is 900. In in 30 seconds it moves 900 meters. Now question is saying now it starts deaccelerating. Now it start deaccelerating. So what will the speed here at t is equal to 30 seconds in acceleration? What will be here speed v? V is equal to u plus 80. U is 0. A is given how much? 2 and t is 30 seconds. Is 60 meter per second. So their velocity is 60 meter per second. Saying that now it is saying that now it start deaccelerating. Now acceleration is in opposite direction. A. Now it start deaccelerating and in 1 minute it stops. In time is equal to 1 minute means 60 second. From there time equal to 60 second. In 60 second when brake was applied after t equal to 60 second its velocity becomes what will be this S? It is asking S2. What will be the S2? So first what I will do for this portion I will calculate first acceleration. So apply v is equal to u plus 80. Final velocity is 0. Initial velocity is 60 plus a into time taken is how much? 67. From here 60 a is equal to minus 60. A is equal to minus 1 meter per second. Means this acceleration is minus 1 meter per second. Okay. So train is accelerating with acceleration of minus 1 meter per second. What will be this distance S2? S2 is equal to ut plus half a d square. The value u is 60
into time taken is 60 minus half into acceleration is minus 1. So here minus 1 will be, if you put here a minus 1, so it will be minus there, into t square. Time is how much? 60. So it will be 3600 minus 36 by 2 will be 1800. So it will be 1800. This distance S2 is how much? 1800. Now, what question are asking? Question number A is asking the total distance travel. A number question, total distance travel is how much? Total distance traveled will be S1 plus S2. S1 is 900 plus S2 is how much? 1800. So it is 2700 meter. Convert into kilometer. So 2700 by 1000 will be 2.7 kilometers. Okay, total distance. This is the total distance covered. Now, after total distance, question number B, what is asking? The maximum speed attained by T. What is the maximum speed? Maximum speed. Maximum speed. So what will be the maximum speed? So look here. In first portion, when train is accelerating, जब पहले पोर्शन में जब ट्रेन एक्सेलरेट कर रहा है, जब फर्स्ट पोर्शन में ट्रेन एक्सेलरेट कर रहा है, तो इस केस में स्पीड हमेशा क्या होगा? स्पीड विल इंक्रीज. ओके, तो यहाँ से लेके यहाँ तक स्पीड हमेशा बढ़ते रहेगा. इसके बाद क्या है, यहाँ डी एक्सेलरेट करना शुरू होगा, 60 मीटर पर सेकंड से स्पीड 0 होगी. यहाँ स्पीड विल क्या होगा? स्पीड विल डिक्रीज. यहाँ से लेके यहाँ तक स्पीड बढ़ा और फिर यहाँ से स्पीड घटा. मैक्सिमम स्पीड यहीं पर ना होगा. दिस इज द वी मैक्स. मैक्सिमम स्पीड विल बी हाउ मच? 60 मीटर पर सेकंड. सीधा मैक्सिमम. क्वेश्चन नंबर बी. Okay. Now question number C is asking, what is question number C? The position of the train at half the maximum speed. जब उसके पास हाफ मैक्सिमम स्पीड का आधा स्पीड होगा तो पोजीशन कितना होगा? सी नंबर क्वेश्चन. सी नंबर क्वेश्चन, half of the maximum speed will how much? So maximum speed is 60. So 60 half is 30 meter per second. It means it is asking when velocity is 30 meter per second, then what are the positions of train? What are the positions of train? ट्रेन कहाँ होगा? पोजीशंस ऑफ ट्रेन. ओके, ट्रेन कहाँ कहाँ हो सकता है? जब स्पीड 30 मीटर पर सेकंड होगा तो ट्रेन कहाँ कहाँ हो सकता है? थोड़ा गेस करते हैं. तो यहाँ पे स्पीड कितना है? यहाँ पे स्पीड 60 है, तो एक तो स्पीड यहाँ 0 से लेके 60 हुआ है, तो यहाँ बीच में कहीं पर एक जगह स्पीड होगा 30. यहाँ पर एक बार कहीं स्पीड होगा 30 मीटर पर सेकेंड. एक बार 60 से 0 हुआ है, तो एक बार यहाँ पे कहीं पर स्पीड होगा 30 मीटर पर सेकेंड. इस कहीं रीजन में यहाँ पर कहीं स्पीड होगा एक बार 30 मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब कितने बार 30 मीटर पर सेकेंड स्पीड होगा? 2 बार होगा. एक बार यहाँ पर होगा, एक बार यहाँ पर होगा. ये वाला पहला पोजीशन कैसे निकालेंगे? पहला पोजीशन, ये पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन. एक फर्स्ट पोजीशन, इसको बोल देते हैं x1, फर्स्ट पोजीशन. और ये वाला जो पोजीशन होगा, इस पोजीशन will be x2. I have to find x1 and x2. Okay, so how you will find x1 and x2? Okay. It is very easy. Question number D. So at this x1, we have known final velocity 30 meter per second and initial velocity is 0. So what I will apply? V square is equal to u square plus 2s. So for x1 apply v square is equal to u square plus 2s. यहाँ से क्या हो जाएगा? Is equal is implies v is implies v square. V is 30 square is equal to u square 0 square plus 2. Acceleration is how much? How much is acceleration here? How much is the acceleration there? So acceleration was, in first case acceleration is 2. So v square u square plus 2a
this is x1. From here I will got 900 is equal to 4x1. Okay. So x1 will be how much? 900 by 4. So it will be 225 meters. First position, this is the first position. So पहला position जहां पर वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड होगा, ये वाला है। दूसरा पोजीशन कहाँ होगा? दूसरा पोजीशन ये है। दूसरा पोजीशन ये x2 है। तो x2 कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मैं ये निकाल लेता हूँ, दिस y। फिर दिस y में से ये हमारा है पहला वाला, ये डिस्टेंस है 900। 900 प्लस y कर देंगे। ये y निकालने के लिए क्या करेंगे? फाइनल वेलोसिटी 30 है, इनिशियल वेलोसिटी 60 है। v square is equal to u square and acceleration is minus. What I will do? What I will do here? तो 4 x2 के लिए क्या करेंगे? फिर से अप्लाई करेंगे। हमारा ये है 60 मीटर पर सेकेंड, और फिर स्पीड कितना हो गया है? 30 मीटर पर सेकेंड। और एक्सेलरेशन a इक्वल टू है -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अप्लाई बी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर प्लस 2s। So here 30 square is equal to u square is 60 square plus 2. Acceleration is -1 and s, this is x1। x1 यहाँ से हम हो जाएगा 900 is equal to 900 इक्वल टू 3600 माइनस 2x1। यहाँ से 2x1 बराबर कितना हो जाएगा? 3600 माइनस 900, 2700। सो x1 इज 1350। सॉरी, okay, so this is actually this is y1। I will say this y1। I will say this y1। y1 कितना आ गया? 350। सो x2 कितना हो जाएगा? x2 कितना हो जाएगा? x2 इज इक्वल टू y1 प्लस ये वाला डिस्टेंस, फर्स्ट वाला जो डिस्टेंस था 900, y1 है हमारा कितना? 3050 प्लस 900। यहाँ से आ जाएगा हमारा 2250 मीटर। तो करोगे तो ये हो जाएगा 2.25 किलोमीटर। ये दूसरा पोजीशन है, 2.25 किलोमीटर फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, जहां पर वेलोसिटी हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। और ये पहला पोजीशन है 225। फर्स्ट पोजीशन, दिस इज द फर्स्ट पोजीशन एंड दिस इज द सेकंड पोजीशन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पोजीशन से ये पहला पोजीशन है, और ये दूसरा पोजीशन है जहां पर वेलोसिटी क्या होगा? 30 मीटर पर सेकंड। दो बार वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, एक बार एक्सेलरेशन के दौरान होगा, एक बार डी एक्सेलरेशन के दौरान। ठीक, तो एक्सेलरेशन के दौरान यहाँ पर होगा, और डी एक्सेलरेशन जब करेगा तो उस समय 2250 मीटर की दूरी पर फिर से स्पीड होगा 30 मीटर पर। ठीक, ये एक अच्छा सवाल है। तो आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर सॉल्यूशन में अभी भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, उसको मैं सॉल्व करने का कोशिश करूँ। ठीक, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। जो बच्चे जेई और नीट का तैयारी कर रहे हो, वीडियोज को शेयर करो। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।